Hi, good morning, everyone. This is Rahul Singh, your fitness trainer and sports nutritionist from FNF. First of all, happy Dashera to all of you. हमें इस साल अपने फिटनेस के रावण को मारना है जो है आलस। सो बॉडी से हमें आलस को भगाकर इस बॉडी से जितना काम कराना है उतना ही हम अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव कर पाएंगे। सो वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक इट इज द मच नीडेड टॉपिक टू बी डिस्कस because due to this lockdown, all the gyms, all the parks, all the grounds, all the stadiums, all the sports clubs were closed. So to keep our body fit at that time, there was only one option left, which was home sweet home. So during this lockdown, बहुत से लोगों ने अपने आप को घर पर ही फिट रखा। बहुत से लोगों ने अपने आप को घर पर ही ट्रांसफॉर्म किया। सेम चीज मैंने भी किया, एज आई एम वेरी डेडिकेटेड एंड पैशनेट टूवर्ड्स फिटनेस। लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस। बिफोर लॉकडाउन आई वॉज 96 kg, though I was having a muscular body but also carrying some fat also. But during this lockdown, means I start working out at home because at that time मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, and as I was addicted to gym, but उस टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन था, घर, home sweet home. So I started working out at home with mostly body weight exercises and some lightweight dumbbells. And then after 4 months, my body weight dropped down from 96 kg to 76 kg. Yes, I lost 20 kg in 4 months. Though I lost lots of muscle mass, but I have also gained the most and important thing, which is a body weight strength. I think it is a really very essential thing to keep you fit, active and lean. So आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि how you can transform yourself without going to gym. Yes, there are a lot of options, there are a lot of things, there are a lot of points to be discussed, that how you can transform yourself without going to gym. उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि what are the benefits of training at home. सबसे पहला बेनिफिट है which is safety. Yes, Hina ma'am, you can ask. Yes, please, you can ask. So as we discussing about the safety norms of training at home, सबसे पहली चीज है safety. As we all know that due to corona, everyone is trying to boost their immunity. क्योंकि जब तक immunity strong नहीं होगा तब तक हम इस वायरस से फाइट कैसे कर पाएंगे. So to boost your immunity, you have to work out. You have to take a proper meal. You have to take a complete rest. But इन सारी चीजों के साथ आपको वर्कआउट के साथ, आपको फिट होने के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसे टाइम पर आपको होना है सेफ. क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कल से सारे जिम खुल रहे हैं और शायद आज भी बहुत सारे जिम ओपन हो चुके हैं. So many people will hesitate or will avoid going to gym. So सब लोग पहले क्या करेंगे, पहले 1-2 महीना या 3 months they will take a feedback. They will wait कि क्या जिम जाना सेफ है या नहीं है. They will actually
wait at that time. Though all the gyms will take precautions, will take safety measure, Hina ma'am, some days run goes so good and some days not. Why? Because ma'am, because I'm really sorry, but it is just because of network issue. I was having a connection problem at that day, so I'm really very sorry. And आज मे बी आपको शायद आपको कनेक्शन जो है बहुत प्रॉपर आज आ रहा है. सो आई होप कि आप ये वीडियो प्रॉपर देखें और प्रॉपर आपको शायद विदाउट एनी इंटरप्शन ये वीडियो आप इंजॉय कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वही मैं आपसे कह रहा था कि दो ऑल द जिम्स विल टेक प्रिकॉशंस बट स्टिल पीपल आर स्कैर्ड. Some people are scared. So rather than waiting for 2 months, you can start your fitness journey from the safest place, which is your home. Yes. So पहला benefit है कि आप अगर आप अपने घर पर ट्रेन कर रहे हैं, it is the safest place to be trained. Now, second thing, if we talk about the benefits of training at home, is the time consuming. आप ऑफिस से आते हैं, फिर अगर आपका जिम आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है तो आप साइकिल से जाएंगे, आप बाइक से जाएंगे, आप कार से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे. सो इट विल टेक टाइम, इट विल एक्चुअली टेक टाइम. फिर समझिए कि आप अगर जिम गए, इफ यू गो टू जिम, आप कोई इक्विपमेंट, आप कोई मशीन जो है उसको आपको यूज करना है, बट आपने देखा कि वो इक्विपमेंट पहले ही ऑक्यूपाइड है, उस पर पहले ही 5 लोग पहले से ही हैं. सो एट दैट टाइम यू विल वेट. आप वेट करोगे तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा. घर पर ट्रेन करने का सबसे बेनिफिशियल चीज यही है कि आपका टाइम जो है वो हो जाएगा कंज्यूम, क्योंकि घर पर आपको सिर्फ ऑफिस से आना है, आपको चेंज करके सैनिटाइज करके आपको सिर्फ अपने मैट तक पहुंचना है. यस, आपको अपने उस 6 फुट के मैट को अपना पूरा जिम बनाना है. सो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे सबके ऑफिस भी खुले हैं, सब पे ज्यादा काम का प्रेशर है, तो मे भी बहुत से लोग अभी जिम जाने में भी उनका अगर इच्छा भी है तो वो जा भी नहीं पाएंगे. है ना मैम? बिकॉज इट इज ड्यू टू कि आप हफ्ते में, पहले तो आप ये बताइए कि आप कितनी बार जॉगिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप डेली जॉगिंग कर रहे हैं, डेली रनिंग कर रहे हैं, तो द बॉडी नीड्स रेस्ट. अगर आप वीक में ऑल्टरनेट डेज अगर आप जॉगिंग करते हैं, सो आप बॉडी को रेस्ट अगर देंगे, सो देन यू कैन परफॉर्म वेल एज कंपैरिजन टू लास्ट डे. सो इन माय ओपिनियन, आप जिस दिन भी आप जॉगिंग करने जाएं, आप रनिंग करने जाएं, तो एक दिन बॉडी को फुल रेस्ट दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर होकर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे. एंड हमारे भूपिंदर सर जो हैं, ही इज एक्सपर्ट इन मैराथन. सो अगर ये क्वेरी आप अगर उनसे पूछें, सो ही इज द बेस्ट सोर्स टू एक्सप्लेन दिस क्वेरी. बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप जितना रेस्ट करेंगे उतना ही आपका बॉडी अगले बार आपके जॉगिंग के टाइम पर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा. सो यही बात चल रहा था कि हम लोगों को जितना टाइम कंज्यूम करके चलेंगे उतना ही हमारे लिए बेस्ट है. थर्ड इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट इज ट्रेनर्स, योर कोच और योर मेंटोर. मान लीजिए आप जिम गए, आपके पास आपका एक कोई स्पेसिफिक गोल है, लाइक फैट लॉस है या मसल गेन है.
सो उसके लिए जिम में मोस्टली जितने भी ट्रेनर्स हैं दे आर स्पेशलाइज इन वेट ट्रेनिंग। बट अब आप ये सोचिए कि अगर आपका, मान लीजिए अगर आपका गोल है कि like to prepare for marathon or to do yoga or to learn calisthenics, तो आपको जिम जाके आपको मसल गेन भी करना है, आपको वेट ट्रेनिंग भी करना है, और आपको योगा अगर सीखना है तो योगा सेंटर जाकर आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना है। सो इस ड्यूरेशन में आपका टाइम बहुत जाएगा और आपको अलग अलग ट्रेनर्स हायर करने पड़ेंगे। सो मेरे हिसाब से इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि टाइम जाएगा इसमें। एफएनएफ क्यों मैं कह रहा हूं इट इज अ बेस्ट ऐप, क्यों है? क्योंकि हमारे ऐप में there are specialized trainer from a specific field. If you want to prepare for marathon, there are trainers. If you want to do yoga, there are trainers. If you want to learn calisthenics, there are trainers. If you are going for a fat loss, there are trainers. If you are going for a muscle gain, there are trainers. So in FNF, there are specialized trainer from a specific field. And still we are upgrading and adding some more new trainers, ताकि हम अपनी ऐप में जो भी हमारे पास, जो भी हमारा सब्सक्राइबर, जो भी हमारा मेंबर होगा, उसका जो भी एक स्पेसिफिक गोल होगा वो अपना वो स्पेसिफिक गोल अचीव कर पाए। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग एट होम। एंड एफएनएफ, अगर आप अपने मैट तक पहुंच गए, उसके बाद पूरी वर्कआउट कराने की जिम्मेदारी एफएनएफ की। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डाउनलोड द ऐप ऑफ एफएनएफ। देयर इज अ लिंक गिवन बिलो इन कमेंट सेक्शन। सो बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक आप उस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे एंड यू कैन एंजॉय द फ्री लाइव सेशन of our trainers with our trainers. So दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, it is that you can work on all the 5 components of fitness. जैसा कि हमारे FNF के पहले लाइव सेशन में योगेश सर ने एक्सप्लेन किया था, आप सबको बताया था कि there are 5 components of fitness. First is cardiovascular endurance, second is muscular endurance, third is musculoskeletal strength, fourth is flexibility, and fifth is ideal body composition. Yes, you can work on all these 5 components. कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। If we talk about cardiovascular endurance, so there are a lot of cardio exercises you can do on mat also, like burpees, mounting, climbing, jumping jack or skipping, etc. In my point of view, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से burpees is the best exercise you can do in cardio at your home, because उसमें क्या होता है कि आपका from toe to head आपका पूरा बॉडी काम करता है, आपका कार्डियो भी हो जाता है और आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी। सो आई थिंक कि अगर आप जितना बर्पीज करेंगे घर पे उतना ही बेस्ट आपका कार्डियो हो जाएगा। और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सो प्लीज गो टू अ ऐप, देयर आर ट्रेनर्स हु आर गोइंग लाइव फ्रॉम नेक्स्ट वीक। प्लीज go for a free live sessions with our trainers and learn many variations of cardio exercises. Second, if we talk about the muscular endurance, you can actually do functional at home. अभी फंक्शनल का मतलब ये नहीं कि आप घर पे टायर ले आओ या रोप ले आओ और चालू हो जाओ।
फंक्शनल में अगर आप चाहो तो आप बॉडी वेट वर्कआउट भी कर सकते हैं, लाइक पुशअप्स। अगर पुशअप्स की बात की जाए सो देयर आर मेनी वेरिएशंस इन पुशअप्स, लाइक डायमंड पुशअप, inclined push-up, declined push-up, normal push-up, etc. You can do pull-ups, you can do body weight squats, you can do body weight lunges. There are a lot of exercises you can do at home जिससे आपका muscular endurance strong हो जाएगा. If we talk about musculoskeletal strength, so उसके लिए if you want you can use the lightweight dumbbells. You can actually एक सेटअप तैयार कर सकते हैं घर पर कि अगर आप कुछ डम्बल्स, कुछ प्लेट्स, एक बारबेल ले आते हैं तो वो आपका जो तीसरा कॉम्पोनेंट है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, उस पर आप काम कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपके पास लाइट वेट्स हैं तो आप यू कैन डू मोर रेप्स to work on your specific muscle. If you are working on biceps, तो आप चाहो तो 5 किलो के डंबल से as much rep you can do. जैसे अगर आप मानिए कि अगर आप 5 किलो का डंबल आप कर रहे हैं so you can do 50 reps. अगर आपका उतना कैपेसिटी है, उतना एफिशिएंसी है तो आप 50 रैप कर सकते हैं. उसके बाद जैसा मैंने अभी देखिए वेट ट्रेनिंग में मेरा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो मेरे लिए सबसे परफेक्ट और जो मैं अपने आप का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज समझता हूँ वो है डेडलिफ्ट. बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं डेडलिफ्ट करूँ. सो मैंने क्या किया, एज यू नो कि मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड हूँ, पैशनेट हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने बेड को लिफ्ट करना चालू कर दिया. सो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको डेडलिफ्ट का प्रॉपर पोस्चर अगर आपको पता है, प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक अगर आपको आता है, तो आप बाय लिफ्टिंग योर बेड अगर उतना आप कर पा रहे हो, यू कैन एक्चुअली डू डेडलिफ्ट एट होम. सो अगर आप फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको घर पर ही इतने सारे फिटनेस के सोर्सेस दिख जाएंगे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है ही. सो ये तो रहा मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ का. नाउ वी टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी. उसका हमारे पास अलग से टॉपिक है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. So इसका हम we will discuss on this topic later. Now the fifth and the most important component of fitness is ideal body composition. If you are doing a proper workout, taking a proper rest, having a clean diet, and you are on your ideal body composition, then chaboom, you have reached at your goal. आपने अपना फिटनेस का जो गोल है, आप लीन हो चुके हैं, आप फिट हो चुके हैं. अगर आपका प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर मील है, प्रॉपर रेस्ट है, और अगर आपका वेट जो है वो आइडल बॉडी वेट रेंज पर अगर आपका पहुंच रहा है, अगर आपका जो अपीयरेंस है वो एस्थेटिक है, लीन है, देन डूड यू आर फिट. अभी if we talk about flexibility, I have seen many people that they avoid stretching either before or after their workout session. I think ये सबसे ही पैथेटिक चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एज के बाद आपके बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है. उस वजह से आपका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो हो जाता है कम. अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तब शायद आप सबको समझ में आ जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए जब
जैसे कि बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ही तेज हवा चलती है, तो मीन्स तो सबसे पहले जो स्टिफ पेड़ होते हैं वो पहले गिर जाते हैं सबसे पहले। और जो फ्लेक्सिबल पेड़ हैं, जैसे अगर मैं स्टिफ पेड़ का नाम लूँ तो पीपल का पेड़ हुआ या बरगद का पेड़, और अगर फ्लेक्सिबल पेड़ का अगर बात करूं तो कोकोनट पाम ट्री है। आपने कोकोनट पाम ट्री को देखा होगा कि जितनी भी तेज हवा चलती है तो वो कभी अपनी जड़ से बहुत ही रेयरली हिलेगा, बहुत ही वो गिरेगा, बट वो हिलता रहता है, वो हिलता जाता है, हिलता जाता है, हिलता जाता है। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा हवा का प्रेशर है तो वो हवा उसको एक साइड पे ज्यादा टिल्ट कर देता है, बट वो उखड़ता बहुत ही कम है, बहुत ही कम। उसके कंपैरिजन में अगर जो स्टिफ पेड़ है, बहुत तेज हवा चली है, अगड़ के खड़ा है, गिर गया, उससे क्या होता है, अभी क्या है, ये जितने भी पेड़ हैं ये नेचर के मारे मजबूर है, बट हम इंसान हैं, हम नेचर के मारे मजबूर नहीं हैं। अगर हम देखें तो हम अपने पांचों कंपोनेंट पे अगर काम करें तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी होगा, हमारे पास हमारा स्टेमिना भी होगा, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा। तो अगर हमारा 3 चीज है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्ट्रेचिंग, तो चौथा चीज जो है मेनली शेप, एस। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ 4S, फोकस ऑन 3S, चौथा एस आपको अपने आप आ जाएगा, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्ट्रेचिंग। ये 3 अगर आपका परफेक्ट है तो चौथा जो है शेप, वो आपका अपने आप आ जाएगा। सो आपको वेइंग स्केल पर ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस और प्रोग्रेशन पे ध्यान देना है। सो वही मैं कह रहा था कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो जैसा कि वो स्टिफ पेड़ के साथ हुआ, वो ही आगे जाके बहुत सारे लोग फेस करते हैं एक एज के बाद। क्योंकि मैंने देखा है कि जिम्स में वार्म अप के नाम पर लोग कार्डियो करते हैं। अभी उसमें क्या होता है कि आपका जैसे मानिए कि कोई बंदा आया, उसने सोचा कि आज मैं यार 100 किलो से बेंच प्रेस करूंगा। अभी वो बेंच प्रेस करने गया और उसने एक टारगेट सेट किया कि आज मैं 100 किलो का बेंच प्रेस करूंगा, लेकिन उसने वार्म अप के नाम पे 20 मिनट तक कार्डियो किया। He was on treadmill for 20 minutes. तो उस 20 मिनट में उसने अपना पूरा एनर्जी खर्च कर दिया। अभी अगर वो चेस्ट करने गया, उसका टारगेट था 100 kg, बट उस दिन उसका सिर्फ लास्ट तक गया 90 kg। दिस इज बिकॉज कि उसने अपना एनर्जी जो था वो खो दिया था, क्योंकि उसने वार्म अप के नाम पे कार्डियो किया। कार्डियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो, बट कार्डियो वर्कआउट के बाद करें तो बेस्ट है। वर्कआउट के पहले अगर आप करेंगे तो आपका जो स्पेसिफिक मसल पर आप काम करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका जो एक टारगेट होगा कि आज मैं 100 किलो का बेंच प्रेस करूंगा या 150 किलो का डेडलिफ्ट, तो शायद ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी आप अपना गोल अचीव, उस दिन का जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो सेकंड थिंग है कि बिना स्ट्रेचिंग के अगर आप वर्कआउट चालू करते हैं, मानिए कि आपने स्ट्रेचिंग नहीं की है और आप स्क्वाट कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर रेंज ऑफ मूवमेंट इफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करी एंड इफ यू आर डूइंग स्क्वाट्स, तो आप सिर्फ शायद से आप हाफ स्क्वाट ही कर पाओगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्कआउट से पहले एंड वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। देयर आर, please go to a FNF page to see
the types of dynamic stretching which you can do before and after your session. There is a video already uploaded in FNF app. Please work on it, and there you can find the link in a comment section. Please click on that link and download the app. And there is there you can view the video and you can start your fitness journey, and you can attend the free live session with our trainers. So ये बात थी कि स्ट्रेचिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है. Now if we talk about कि how you can get a lean and chiseled body at home. Yes, you can get it, because अगर देखें there are 3 types of body. First is ectomorph, second is mesomorph, and third is endo. अभी ectomorph जो रहता है वो एकदम लैंकी होता है, एकदम पतला, एकदम स्लिम. वो इसलिए होता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म हाई, एकदम एक्सट्रीम में हाई होता है. सो वो कुछ भी खा ले, उसका वेट गेन होना एक टाइम तक इम्पॉसिबल होता है. दूसरा जो बॉडी टाइप है मेसोमॉर्फ, वो कुछ भी खा ले, अगर वो थोड़ा सा बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर ले तो उसका बॉडी एकदम एस्थेटिक, एकदम लीन, मस्कुलर हो जाता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट होता है. इफ यू टॉक अबाउट द एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ को भगवान से श्राप मिला होता है, क्योंकि वो कुछ भी खा ले, कुछ भी, अगर वो डाइट भी कर रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली डाइट कर रहे हैं, और अगर वो थोड़ा सा भी कैलोरीज अगर ज्यादा खा ले तो उनका वेट अपने आप बढ़ जाता है. आई एम ऑल्सो एंडोमॉर्फ टाइप. सो मैं जानता हूँ कि एंडोमॉर्फ के साथ इतनी ज्यादती क्यों होती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म हायर रहता है. सो इन तीनों बॉडी टाइप्स का वर्कआउट पैटर्न जो है वो दे आर डिफरेंट. इनका डाइट भी सेम होगा, बट इनका जो कैलोरीज इनटेक है वो होगा सेम. अभी मानिए कि अगर कोई एक्टोमॉर्फ है तो उसका वर्कआउट पैटर्न ऐसा होगा कि उसको वेट ट्रेनिंग के साथ साथ हफ्ते में 1 या 2 बार कार्डियो करना जरूरी है. बिकॉज अगर वो स्लिम है, लैंकी है, अगर उसको अपना मसल गेन करना है, सो आपको कार्डियो भी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको 5 कंपोनेंट पे काम करना है. बट आपको कार्डियो थोड़ा कम करना है एज यू हैव टू गेन वेट. इफ यू टॉक अबाउट मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ को वेट ट्रेनिंग के साथ साथ हफ्ते में 3 बार कार्डियो करना है, ताकि उनका बॉडी एस्थेटिक ही रहे और उनका जैसा गोल है उस हिसाब से उनका बॉडी हो. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंडोमॉर्फ, सो एंडोमॉर्फ के साथ मेहनत बहुत है. एंडोमॉर्फ को क्या करना है कि हफ्ते में 6 दिन, ऑल द 6 डेज, आपको आफ्टर योर वर्कआउट सेशन, आफ्टर योर वेट ट्रेनिंग, आपको कार्डियो करना है, क्योंकि आपको भगवान से श्राप है कि आपका वेट ज्यादा बढ़ेगा. ये अगर ये तीनों बॉडी टाइप यही पैटर्न अगर फॉलो करके चलेंगे, चाहे अगर आप घर पे भी कर रहे हैं या आप जिम में भी, तो भी अगर आप ये तीनों पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका जैसा गोल है आपको आपका वैसा बॉडी मिल जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट द डाइट, इफ यू टॉक अबाउट द कैलोरीज इनटेक, सो एक्टोमॉर्फ का मैं कहूंगा कि जब भी वो एक्टोमॉर्फ वाला बॉडी जो है वो जो भी खाएगा वो
जैसे उसका नाश्ता है, अगर नाश्ते में अगर वो कम कैलोरीज वाला खाना खाएगा तो वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर कि एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप जिसका भी है वो हाई कैलोरीज मील खाए ताकि उसका मसल गेन में उसको हेल्प हो। सेकंड, अगर हम देखें मेसोमॉर्फ का, वो जब भी खाएगा तो अगर वो एवरेज कैलोरीज डेफिशिट, मीडियम कैलोरीज डेफिशिट वो खाएगा ताकि उससे क्या होगा कि उसका जो बॉडी टाइप है, एस्थेटिक है, लीन है, वो वैसा ही होगा। एंडोमॉर्फ को क्या करना है कि जितना उनका कैलोरीज डेफिशिट चल रहा है, जितना उनका कैलोरीज इनटेक चल रहा है, जैसे मानिए कि अगर वो रोज का 3 या 4 हजार कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, उनको अपना कैलोरीज को कट करना है, कैलोरीज थोड़ा डेफिशिट करना है अगर आपको लीन एंड चिजल बॉडी चाहिए है। अगर आप मानिए अगर आप 4000 किलो कैलोरीज डेली अगर आपका इनटेक है, आप उसको थोड़ा कम कर दो, ग्रेजुअली थोड़ा स्लोली थोड़ा कम करिए, लाइक 4000 से 3000, फिर 3000 से 2500, 2500 से 2000। बट अगर आप जैसे मानिए कि अगर आप पहुंच गए 2000 किलो कैलोरीज तक, तो आपको वो स्प्लिट करके खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट है कि वो अगर वो एक बार का मील कर रहा है तो शायद वो एक बार में ही 600 या 700 किलो कैलोरीज का खाना खा जाएगा। तो अगर आप 700 किलो कैलोरीज का एक बार में खाना खाते हैं, तो अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो आपका 2000 से ज्यादा आपका कैलोरीज जा रहा है, आपका 2100 जा रहा है। इट्स बेटर कि वो 2000 कैलोरीज को अगर आप स्प्लिट करके खाएं 6 बार में। मतलब अगर आप सोचिए कि 350 एक मील में, 350 कैलोरीज अलग में, तो ये अगर आप 6 बार अगर आप स्प्लिट कर देंगे तो आपका कैलोरीज इनटेक भी कम होगा एंड देन यू विल गेट अ लीन एंड चिजल बॉडी। यही मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक था। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन एंड ये मे बी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। So once again, please download the app by clicking on the link given in comment section and start attending the free live session with our trainers. Please again download the app, क्योंकि उस हमारे ऐप में FNF में आपको हर टाइप का ट्रेनर मिल जाएगा। जैसा भी आपका कोई भी स्पेसिफिक गोल है, आपका गोल हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स हैं आपका हर गोल अचीव करवाने में दे आर एक्सपर्ट। सो गाइज, goodbye guys, see you soon and once again happy Dashera to all of you. Goodbye, bye bye.